मामला है अज एक लेडी दो बच्चों को बिठा के अपने किसी फंक्शन के उत्ते जा रही सी ते सामने वो भैन भणवाइयां आए दूसरी सड़क पर उन्हें एक दूजे को देख लिया तो रुके इशारा करके तो ये रुक रही है हाले साइड पर अपने तो पिछों एक बस आई है जी रोडवेज की दस रहे है किस डिपू की है ये सारा मामला वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये बस जी तेज़ रफ्तारी बिना हारन दिते आई है तो इन्हें उन्होंने पिछों टक्कर मारी है जिद बच्चे जोड़े है सज्जे पासे डिगन कारण पिछले टायर थले कुचलती हुई वो भजा के तो तेज़ रफ्तारी भजन च कामयाब हो गया तो लेडी जी है वो बच गई है वो खब्बे पासे डिगन करके बच गई है। ये सारा मामला जोड़ा वो भैन भणवैया ने अखां नाल वेख्या तो यदी DSP सिटी ते SHO सिटी कार्रवाई कर रहे हैं तो परचा दर्ज करके 304 का छेती बस नूं कब्जे विच लैके ते कार्रवाई की जाए। सानूं पता लग्या असीं उसे वेले बटाले पहुंचे ने सिविल हस्पताल दे विच उत्थों सानूं फोन कि इन्ने बजे 7:10 ते एक बस निकलदी आ हुशियारपुर डिपू की जिहड़ी आ बटाले तो उत्थों चली आ जो हकीकत राय की समाध के कोल अगे आई है पंप के लागे उत्थों अगे जा रही सी पिछों बस ने इन्होंने साइड मारी धक्का वजया तो ये बच्चे जोड़े बस के थले डिग गया तो पिछले टायर जोड़े उपरों की निकल गए जो असीं उत्थों आण के पता किया तो ड्राइवर का ही सारा कसूर है जिन्ना भी इत्थों पता लग्या सानूं आण के आस पास तो पुछया वा तो जो ड्राइवर है वो मौके पर बस भजा के लै गया तो वो जो मौके पर मौत हो गई बच्चों की दोनों की एक बच्चा है 5 साल का एक 8 साल का वा बच्चे का नाम जोड़ा है वा सहबजोत है तो बच्ची पलकप्रीत है तो बहुत ही दर्दनाक माड़ी घटना हुई है। इस करके सानू ड्राइवर जोड़ा वा उहदा सही जोड़ा पता लगना चाहिए वा उहदे ते जो बनती कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए है। गायब कदे हो सकती है। देखो मैंने तो पता नहीं, मैं हुणे IG ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ जो ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ?
ਇਹ ਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਗਡੋਰ ਠੋਕਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਬਾਦਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੇਲ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਬਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਜਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਪੇ ਆਉਣਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀਏ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਬੀਜੇਪੀ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। मुंबई में बहुत सारी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही है और उसके लिए हमने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 का एक स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है, स्पेशली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोटरसाइकिल थेफ्ट। उसी से एक इन्फॉर्मेशन जो मिली थी, उससे एक आसिफ सैयद नाम का एक एक्यूज हमने अरेस्ट किया हुआ है, उसके और 2 एक्यूज के साथ में। ये गैंग के पास है। अब तक हमने 8 मोटरसाइकिल तो रिकवर की है, बहुत सारे मोटरसाइकिल की इन्फॉर्मेशन उसने दी है, वो रिकवर करने की प्रोसेस चालू है। ये जो एक्यूज है आसिफ सैयद और उसकी गैंग,
ये बेसिकली थाना पुलिस के रिकॉर्ड पे है। उसको प्रीवियसली मोका में भी वो गिरफ्तार था, 2009 में मोका से बाहर आया और उसके बाद में उसकी वारदातें चालू है मोटरसाइकिल चोरी करने की। एक उसकी मोडस ऑपरेंडी है, रात को ये निकलता है बाहर और जो पार्किंग में लगाई हुई गाड़ी है वो चुराता है। मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है, जो नई मोटरसाइकिल है जो बेच सके वो इमीडिएटली मार्केट में जो बेची जाती है ऐसी मोटरसाइकिल, वो डायरेक्ट को वायर कट करके डायरेक्ट करके चुराता है। वी होप कि बहुत सारी ऑफेंसेस ये गैंग के पास से हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सर, जैसे कि 3 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इनकी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो तीनों की बैकग्राउंड कैसी रही है? ये तीनों आप देखिए, उसमें के 2 जो है ये प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं और ये जो आसिफ जो है ये आसिफ दिवा का रहने वाला है। एक क्रिमिनल है ये, तो तीनों भी क्रिमिनल है, उनका पास रिकॉर्ड भी है और गेन के लिए इमीडिएट पैसे के लिए धंधे करते हैं। प्रीवियसली भी अटक हो चुके हैं, बाद में बेल में आने के बाद वापस उनका ये मोटरसाइकिल चोरी का धंधा उन्होंने किया। सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया 7 मोटरसाइकिल जब्त कर लिए गए हैं, इनकी कुल कीमत क्या होगी? देखिए, एक मोटरसाइकिल की कीमत तो बहुत ज्यादा है, करीबन 80,000 90,000 हर मोटरसाइकिल की कीमत है, लेकिन ये चुराने के बाद सिर्फ 10-15 हजार में बेचते हैं जी। सो अभी तक हमने जो रिकवरी की है, 6-7 लाख की रिकवरी हमने मोटरसाइकिल की है, जो वो वैल्यू जो है जो मोटरसाइकिल चोरी हुई, लेकिन उन्होंने जो इसको बेचा है वो कम 10 या 15 हजार में वो लोगों ने बेचा है। तो किस तरह से लोगों को झांसा दिया करते थे? उसके पेपर तो होते नहीं थे, तो पब्लिक लेती कैसे, नागरिक लेते कैसे उस बाइक को? वो लालच है, जब हमने बताया ना सस्ते में गाड़ी मिलती है, ये सस्ते में लालच के हिसाब से लोगों ने गाड़ी ली हुई है सस्ते में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle. अ, 14 नवंबर को एक डेड बॉडी मिली थी पनवेल स्टैंड के बाजू में। इनिशियली वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी, लेकिन बाद में वो आइडेंटिफाई हो गई। वो मैथ का नाम था दिलीप आनंदराव इंगड़े करके। ये दिलीप इंगड़े जो मैथ है वो ओरिजिनली सांगली का था। जब सांगली का पता चला, शिराला तालुके में रहता था, हमारी पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो ऐसे पता चला कि गए 15 साल से वो अपने फैमिली के साथ में नहीं रहता और जत तालुके में एक जगह वो वॉचमैन का काम करता था, तो वही भी जाके पुलिस ने इंक्वायरी कर दिया। बाद में बहुत इंक्वायरी करते करते एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वहाँ पनवेल आजू बाजू इलाके में एक ऐसी गैंग ऑपरेट करती है जो दारू पिए हुए लोगों को लूटने का काम करती है। तो ये जो मैथ है वो भी दारू पिया हुआ था, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारे अल्कोहल स्टमक कंटेंट्स में आए थे। तो उसी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमारे क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 के जो ऑफिसर और कर्मचारी है, उन्होंने गंगाराम जायसवाल ये एक्यूज को अरेस्ट किया है। ओरिजिनली यूपी का है और पिक पॉकेटर है। उसके पहले वो गोवा मडगांव में था, उसके साथ में दूसरा एक एक्यूज है। ये दोनों वहाँ पिक पॉकेटिंग के काम करते थे। वहाँ गोवा की पुलिस उनके पीछे पड़ने के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए और ये 2 साल से ये ऐसा इधर काम लूटने का काम करते थे। ये जो मैथ है वो मैथ उस दिन रात को दारू पिया हुआ था और उसको लूटने के लिए ये गए। मैथ जरा हेल्दी था और उसने जब जैसे रिसर्च किया तो उसको लूटने के बहाने उन्होंने उनको चेस्ट में स्टैब करके उसको मारा और उसको उसके पास से जो घड़ी और बाकी के वैल्यूएबल थे वो चुरा ली। वो गंगाराम जायसवाल को 8 तारीख को अरेस्ट किया गया है। उसका 14 तक पुलिस कस्टडी पुलिस ने लिया हुआ है। मेरा पूरा मेन सब बंद करके जाता हर रोज। मेरा कोई नुकसान है, ये बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। बजरंग आर्ट में आग लगी, बजरंग आर्ट सर बताएं कि आग कितने बजे लगी थी और आग लगने की वजह क्या थी? आग लगने की वजह शायद शॉर्ट सर्किट ही है, जी। क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद वहाँ जो ऊपर जो प्लास्टिक था डालेगा जी, वो प्लास्टिक ने अंगार पकड़ लिया। उसके बाजू में मोटरसाइकिल थी जी, मोटरसाइकिल ने फायर पकड़ने के बाद जो बाजू में छोटा जो मार्केट है हाजी मिठाई जी, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का सेट डाला है। ओके। तो मोटरसाइकिल ने अंगार पकड़ने के बाद प्लास्टिक को तुरंत उसने अंगार पकड़ लिया
और ये जो मार्केट है भाजी मार्केट है, इसका 2-3 गाड़ी का नुकसान हो गया जी। अच्छा, सामने कितनी दुकानें जली है और कितनी दमकल गाड़ियां आई आग बुझाने के लिए? शायद अभी नई मुंबई महापालिका की 3 दमकल गाड़ियाँ है, नेरुल, सीबीडी और वासी जी। दुकान तो एक पूरा तरह की जो जेरोक्स और प्रिंटिंग प्रेस का दुकान है वो पूरी तरह जल गया है जी। लेकिन भाजी मार्केट का जो मंडी का है शायद 2 गाले थे उनके जी। इसमें एक गाड़ी का पूरा नुकसान हो गया, बाकी तो सब बचा है। अच्छा, समझ यहाँ के जो नागरिकों का आरोप है कि उनका कहना था कि दमकल कर्मी समय पर नहीं पहुंचे, नहीं तो आग पर पहले काबू पाया जा सकता था। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो अभी पब्लिक को पता कि उसने क्या सच्चाई। गाड़ी तो टाइम पे निकली है जी। ये जो गाड़ी सुबह जो निकलती है तो गाड़ी हम पूरे ट्रायल के लिए थे, गाड़ी सुबह जी इधर नेरुल में ट्रायल के लिए गाड़ी गई थी, उसकी तो थोड़ी सी, लेकिन गाड़ी टाइम पे आ गई है। अगर गाड़ी टाइम पे नहीं आती थी तो ये इतना बहुत सा बड़ा हादसा होता था, लेकिन देखा आपने ये पहले ये मैं और एक बंदा है, हम लोग तीनों ने कहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है? यहाँ पे ये दुकान से अंदर से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बजरंग आर्ट्स में से शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद में उसकी बाइक ये हो गई। अच्छा, बाइक ब्लास्ट हुआ उसका, फिर आग भड़क गई और ये मार्केट को भी जब जाके आग लगी। तो टंकी में आग लगने से टंकी ब्लास्ट हो गया? हाँ, टंकी ब्लास्ट होने की वजह से, बाइक की वजह से मार्केट में आग लगा। अब कुल मिला के तो यहाँ से नहीं बोलेंगे तो 1, 2, 3 और ये बाकी का मार्केट, बाकी पकीरा मार्केट जो है उसके अंदर भी आग लगी इनकी वजह से। कॉल किया है 8:30 बजे, मुझे रिटर्न कॉल आ रहा है कि बोले किधर पे, मैं बोल रहा हूँ नियर जामा मस्जिद पे आग लगी है। तो वो बोल रहे मुझे क्या, बोले मार्केट में लगी है। तब उनको लेके आई है, जाके रिटर्न उनको लेके आई है। आने के बाद आपको मार्केट पूरी बच जाती है, मार्केट को तो कुछ आग नहीं लगती है। मार्केट को आग नहीं लगती, महानगर पालिका की वजह से, गलती की वजह से ये सब ज्यादा नुकसान हो गया। मेरा कम से कम 2-3 लाख 4 लाख का हो गया मेरा जी। कितने मशीनें, जेरोक्स की कितनी मशीनें थी आपकी? कलर मशीन है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट है जी। और कस्टमर का बहुत कागज है अंदर जी। मेरा कंप्यूटर है इसमें जी। जिस तरह से पूरा जलकर खाक में तब्दील हो चुकी है आपकी दुकान, क्या आपने दुकान का इंश्योरेंस कराया था? इंश्योरेंस नहीं है उसमें। आपका इंश्योरेंस नहीं है? मैं तो भाड़े में चला रहा ना मैं जी। तो इस आग की खबर आपको कब लगी, कितने बजे खबर लगी आपको? मैं तो अभी सुबह आया, अभी मालूम पड़ा मेरे को, रात कोई नहीं बोल रहा। हार्ट में कोई वॉल ब्लॉक है जी, कोई वॉल लीक हो रहा है या कोई होल है सुराग है हार्ट में, या हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम है जी, या कोई ट्यूमर है, या कोई जो हार्ट का जो एक्सटर्नल पेरिकार्डियम रहता है उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो सारा जस्ट लाइक हम शरीर के अंदर जाके हार्ट देख रहे हैं जी। ऐसी ये जांचें बहुत यूजफुल रहती है पेशेंट की। जो अभी जो सब हार्ट की डिसीज है इसका डायग्नोसिस मेनली अभी के ज़माने में इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी तो ये सारे बच्चों का हम फ्री में इलाज कर रहे हैं जी। और ये सारे जो बच्चे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज है उनमें जी, जिसमें ये बच्चे सारी जगह घूम के आए हैं। ओके। कई सांगली, बहुत सारे बच्चे सांगली से है, मुंबई में बहुत बार आ चुके हैं, जिसमें बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स डिसीज जिसको कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं था जी। तो इसको हम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश। इधर में वो सांगली में ट्रीटमेंट कर रहे पहले सांगली में थे? वो संतोष डॉक्टर पाटिल मैडम है उनको बताया। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं, कुछ भी खर्च नहीं हुआ? उन्होंने सब स्टॉप नहीं किया और हॉस्पिटल। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरह से आपके बच्चे का इलाज हो रहा है उससे आप संतुष्ट हो क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। दीपाली जी, आप कहाँ से आए हो यहाँ अस्पताल में? मालगांव में। मालगांव कहाँ पर है ये? मिरज तालुके में है। अच्छा दीपाली जी, आप ये बताएं, आपका जो ये बच्चा है, लड़का है लड़की है? लड़की है। इसके लिए अस्पताल में अब तक कितने रुपए खर्च किए? अभी 1 रुपया खर्च नहीं किए हैं। गौसपाक जीपीआई का पहले बताना चाहूँगा, फुल फॉर्म है गौसपाक इरिसिया वेलफेयर ट्रस्ट। गौसपाक वेलफेयर ट्रस्ट हम लोगों ने इसलिए बनाया जो हमारे तबके, जो जितने भी हमारे कौम के गरीब भाई हैं जो पैसे की कमी के कारण कुछ अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ नहीं कर पाते हैं, अपने आने वाले एजुकेशन को पूरा करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिटी, ये हमारे गौसपाक इरिसिया वेलफेयर ट्रस्ट उनको सपोर्ट करेगा। अगर उस लड़के के अंदर पढ़ने का टैलेंट है तो उनका पूरा खर्चा हमारी कम्युनिटी उठाएगी। कमेटी को 2011 से चालू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे सपोर्ट किया है, जैसा कि हमारे गाजीपुर में एक हमारे भाई के घर पे आग लगा था। हमको रात को
खबर आता है 11 बजे कि नहीं हमें आग लगा है, तो हम लोगों ने सुबह होते होते 12 बजे तो उनके यहाँ पे हमने मदद पहुँचाई। और भी हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो अचानक से ट्रेन में उनका दुर्घटना हो गया, तो हमारी कमेटी 1 घंटे के अंदर अंदर उनके घर वहाँ तक पहुँच गई, उनके घर वालों तक पूरी खबर दिया और अपने अंडर में लिया। और हर तरीके की जो कोई भी मुसीबत आती है हमारी कमेटी उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हम इदरीसी कम्युनिटी, जो हमारी इदरीसी दर्जी कम्युनिटी है, उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग ग्लोबल कम्युनिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि वन वर्ल्ड वन विलेज एक नारा दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो क्यों नहीं हम अपने कम्युनिटी के लोगों को उस विचारधारा के साथ जोड़ें और लोगों को साथ लेकर चलें, और जो आज के दौर से और पुराने दौर के जो लोग हैं उनको नई धारा से जोड़ने के बाद इनको एडुकेटेड करें और इनके एजुकेशन के लिए काम करें, और जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, जो आज काफ़ी सालों से आगे नहीं आ रहा, उन्हें आगे लाया जाए। तो आपकी कमेटी का मेन पॉइंट या एजुकेशन है? एजुकेशन है और हेल्थ है, मेडिकल है। तो एजुकेशन पर भी आप लोगों ने कहाँ तक वर्क किया है, कहाँ तक आपका काम है, कितने लोगों को आपने एजुकेट के लिए पढ़ाने के आगे बढ़ाया है? जी देखिए, हमारे कुछ बच्चे हैं जो दूसरे जगहों पर कुछ इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिनके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग भी अपनी कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने लोगों में से बच्चे लाइए, जो बच्चे अभी आने वाले 10th और 12th में मेरिट लिस्ट पर हैं। आप उनका नंबर्स, उनके मार्क्स लाइए, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि हम अपने लोगों में से कितने लोगों को शॉर्ट आउट करते हैं कि कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी कमी हमारे कम्युनिकेशन में कि हम लोग कुछ अच्छे टेलर्स हैं, कुछ अच्छे मास्टर्स हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन आज हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स नहीं है, आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है, जो हर कम्युनिटी के लिए एक पिलर्स होते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन में कौन सी ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की उनको बात कर रहे हैं? तो सर, हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि हम लोग आईपीएस पैदा करें अपनी टीम में, हम लोग आईएएस पैदा करें, डॉक्टर्स लाएं अच्छे, लॉयर्स लाएं अच्छे, जो हमारी कम्युनिटी का हेल्प कर सकें, अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट गुरु लाएं जो इस चीज़ को मैनेज कर सके, जो एक अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो इस एजुकेशन में क्या आप लड़कियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं? जी 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 जी, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक समाज सुधारता है, तो एक पढ़ी लिखी औरत एक पीढ़ी सुधारती है। इदरीसी बिरादरी के लिए जो अपने वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, अपनी इदरीसियों की है, उनके लिए जैसे सिलाई सेंटर्स हैं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, इस तरीके से हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप लड़कियों को आगे बढ़ाने का मौका मिले तो आप किस तरह से उनके आगे बढ़ा रही हैं? जी, एजुकेशन के लिए मेरा मतलब मेन है कि एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चियों को। उसके बाद आता है कि जैसे हमारी महिलाएं हैं, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर हुआ, इस तरीके की उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो आगे भी अपने आप को रोज़गार जो है अपने आप कमा सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। हमारी ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, मैं खुद भी क्लास चला रही हूँ अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में, और उसमें करीब अब तक जो है करीब 200 औरतों को प्रशिक्षण मिल चुका है। उसमें बच्चियाँ भी हैं, महिलाएँ भी हैं। हम लोग यहाँ पे एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारा मकसद है वो एक मतलब सभी तक पहुँचे। और आपकी इस कमेटी को और बढ़ाने के लिए और जो भाई हैं उनको इनसे जोड़ने के लिए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ पे आएँ, लॉगिन करें और वहाँ पे हमारे ट्रस्ट के मेंबर बने। जैसे कि अभी हाजी साहब ने आपको बताया कि हम लोग जो है एजुकेशन के लिए भी हेल्प करेंगे, मेडिकल भी हेल्प करेंगे। हमारे जितने भी मेंबर हैं, हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सभी के लिए काम किया जा रहा है। हमारी सोच थी कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अपनी बिरादरी के लोगों को इनको कैसे कामयाब बनाया जाए, जिसमें हमारी सोच जो है, हम लोगों ने हमारे सिर्फ हम दो लोगों ने मिल करके इसको शुरू किया, मैं मोइनुद्दीन और इमामुद्दीन। इसको हमने एक सोच को इस आकार में लाने के लिए इतनी जद्दोजहद किया, इतना मेहनत किया, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हम रात भर जागते थे, हम 10 12 घंटे तक एक साथ में अपना प्लान बनाते थे, हम कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे। आज उसका नतीजा ये है कि आज हम लोगों के बीच में। जैसे आपने ये कमेटी जब स्टार्ट की थी तब आप कितने लोग थे और आज आपकी कमेटी कितना आगे बढ़ के कितने लोग हो गए? सिर्फ उस टाइम हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, 2 से 3 हुए और ऐसे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज मिनिमम कम से कम हमारे साथ 2000 लोग हैं। करें हमको हमसे जो भी बन पड़ता है हम उनकी जो है कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए। और हमने एक रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो अपना करेंगे, लॉगिन करेंगे www.gospark.in पे, और उनका जो है पूरा बायोडाटा उसके अंदर आएगा। उनको कभी भी कोई तकलीफ़ होती है तो खाली हमको लॉगिन पे एक मैसेज या ईमेल डालते हैं। हमारी टीम रात 24 आवर्स चौकन्ना रहती है कि मतलब उनको किस तरीके से कैसे कितनी जल्दी से जल्दी मदद पहुँचाई जाए।
आपकी कमेटी क्या मतलब कोई ऐसी चुनी हुई जगह है जहाँ वर्क करिए कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर इंडिया तो जस्ट मैडम अभी मैंने शुरू किया है। अभी हमारा ये सेकंड सेलिब्रेशन है। अभी तो हम आपस में इकट्ठा हो रहे हैं और आने वाले वक्त में हम लोगों का पूरा मकसद है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाना। और आप एजुकेशन को जैसे आपने अभी स्टार्ट किया बच्चों के लिए एजुकेशन, तो ये आपका मतलब क्या सोच है, आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं उसे? हम अपने बच्चों को देखिए, हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स लोग हैं सबकी सोच अलग अलग है, सबके अच्छे अपने सोच हैं। हमारी सोच है कि हम इनको जो है अपने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग इनको एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चर और इनका अपना एक ब्रांड हो। जैसे आज पेंटालून है, मैं ऑलरेडी खुद प्रोग में था, प्रोग में फैशन डिज़ाइनर था। प्रोग का जॉब छोड़ने के बाद में मैंने खुद का अपना स्टार्ट भी किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन किया महाराजा टेक्सटाइल लिमिटेड में। और मेरी सोच ये है कि मैंने ये देखा है कि आज जब हमारी बिरादरी के कोई भी एक सिंगल पर्सन कोई गलती करता है तो फैशन बनता है, गलती से फैशन बन जाता है। और फैशन वो एक फैशन इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन गई है जो आज ग्लैमर्स में आ गई है। उसके बगैर हॉलीवुड बॉलीवुड सब बेकार हैं। तो हम जानते हैं और हम ये भी मुझे मालूम है कि आज हमारी कौम जो है जिस मुकाम पे है, लेकिन उसको अपना अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनको मैं जागृत करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि तुम जिस पैसे से जुड़े हो उससे अच्छा कोई पैसा नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को और शिक्षित कीजिए और उस चीज़ को नई तकनीक के हिसाब से हम लोग जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। नहीं, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि आज की डेट के अंदर जो हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें हमारी काफ़ी जो है गर्ल्स भी जुड़ी हुई हैं और बॉयज़ तो है ही है साथ में। और फिर मैं इसमें जो हमारा ये फील्ड और जो हमारा ये फैक्टर है फैशन डिज़ाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, जो भी इस टाइप के, उसमें बॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और गर्ल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम यही चाहते हैं कि अगर हमारी फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी गर्ल्स ले आती हैं और उसको मतलब किस हद तक मतलब कैसे समझती हैं हमारे बिज़नेस को, कैसे प्रोत्साहन मिलता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमको जो है देखना और बताना ज़रूरी है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि वो लोग जो हमारे साथ में रहें। और हमारा आज मकसद यही है सबको इकट्ठा करने का कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एकजुट होकर के कुछ अच्छा करें अपने कौम के खातिर। जो भी एडवाइजेस, जो भी लोगों को जानकारियाँ होती हैं, मैं उसको उन लोगों तक पहुंचाता हूं और सभी मिल करके अपनी राय से जो है इस ट्रस्ट के काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस कमेटी को कहां से आपने स्टार्ट किया? ऐसी कौन सी जगह थी जहां से आपने इस कमेटी को स्टार्ट किया? हमने ये महसूस किया तकरीबन 3-4 साल पहले। कमेटियाँ तो ऐसे बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन हमने जो महसूस किया कि आज के वक्त के मुताबिक जो आज का दौर है, मीडिया हमारे बीच में है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया और हमने जो है एक वेबसाइट जो है लॉन्च करी www.gospak.in, जिससे घर बैठे जो है सभी हमारे भाई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो जो है हमसे जुड़ सकता है। वो इस पर लॉगिन करेगा, उसकी पूरी फैमिली ट्री बन जाती है और वो अपना पूरा डिटेल जो है उसके ऊपर जो है वो प्रिंट कर सकता है, जो घर बैठे कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी इंसान उसको देख सकता है और अपने तमाम ख़यालात को, तमाम बातों को वो हमसे उस माध्यम से भी शेयर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी मिली हमसे कि जो हम बहुत ही कम समय में हम अपने बहुत सारे भाइयों से जो है आसानी से जुड़े और उन तक हमने अपने मैसेज को पहुंचाया। और आज आप ये जो देख रही हैं, ये हमारा गौसपाक एशिया वेलफेयर ट्रस्ट का दूसरा सेलिब्रेशन है और इसके बाद जो है हमें और आगे बहुत कुछ काम करना है और हम अपने बिरादरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।